Hello student, myself Professor Anjali Patel from Bhopal BBA College Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to your semester third in your SY BBA. In today's video, we'll learn about the financing entrepreneur venture where brief introduction about that topic has been given in the live section. So we have already learned the franchises, its advantages and disadvantages are being covered in both the section, that is either वो video section हो कि live section है. Then we have learned about the type of franchises. Then we have learned about the types and agreement of franchises. And today we will learn about the financing entrepreneur venture. We know that the ultimate success of an enterprise depend upon the availability of sufficient finance. कोई भी enterprise का success जो है वो किस पे depend है? It depend upon the availability of sufficient finance. In other words, finance is being required for mobilizing the resources of an enterprise. An enterprise require the finance at every stage of the life cycle, whether it is your introduction stage, that is expansion stage, where you are starting your business, whether you are at the stage of development, or whether you are at the stage of in addition to efficient functioning of various departments. So finance is required at every stage. In your introduction stage, finance is being required to purchase your plant and purchasing the fixed asset such as machine and equipment. In development stage, finance is required for continuous mobilization and upgradation of the enterprise to survive and grow in today's competitive business environment. And in efficient functioning of various departments, finance is also being required to have a efficient functioning of your various departments such as production, marketing, research and development. Often the enterprise depend upon the smooth flow of the funds. For example, marketing department required finance a sufficient amount of funds just to promote and distribute the product. Therefore, an enterprise need a finance at every stage. So finance is depend on the various factors such as size and nature of the business. So this was the introduction of financing the entrepreneurial venture. क्या याद रखना है? First, you need to remember that the success of any enterprise depend upon the availability of finance, and finance is required every stage of the business, whether वो introduction stage हो, whether वो development stage हो. और ये याद रखना है कि finance हमें required है to have a smooth activity of the business. तो introduction stage में finance क्यों required है? Just because हम purchase कर सकते हैं plant and machinery, fixed asset, machinery and equipments. डेवलपमेंट स्टेज में हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? जस्ट टू हैव अ कंटिन्यूस मोबिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द एंटरप्राइज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन टुडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट. Or in addition, we need a finance to have effective functioning of various departments such as production, marketing, research and development of the enterprise, which depend upon the smooth flow of finance. So finance is required every stage of life and to handle each and every activity of the business. Now finance जो हमें required है, जो needed है of an enterprise depend upon the various factors such as size and the nature of business. Now whenever you are at earlier stage finance, you need a seed capital stage, you need a startup stage, you need a second round finance. But when you are later stage finance जो है वो दो डिवाइड में होगा. एक होगा अर्लियर स्टेज फाइनेंस जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, और एक होगा लेटर स्टेज फाइनेंस जो बिजनेस स्टार्ट होगा उसके बाद. तो अर्लियर स्टेज में फाइनेंस कैसे वे में रिक्वायर हो सकता है? सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंस. लेटर स्टेज फाइनेंस के बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद तो एक्सपांशन के लिए चाहिए, ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, आपको कुछ बाय करने के लिए चाहिए. तो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अर्लियर स्टेज फाइनेंस एंड लेटर स्टेज फाइनेंस. नाउ फाइनेंसिंग a new enterprise. Financing a new enterprise, that is meant an enterprise has a two type of financial requirement. ठीक है, कोई भी हम enterprise है, it require finance for starting its business and carrying out the various related activity. Financing a new enterprise involve two parts, that is we need to estimate of the funds, that is capital requirement, and we need to decide the resources. जब भी फाइनेंसिंग अ न्यू एंटरप्राइज मतलब वी नीड टू डिसाइड अबाउट कि हमें यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, दैट इज एस्टिमेटिंग द फंड्स और एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड वी नीड टू डिसाइड द सोर्सेज. सो एंटरप्राइज हैज टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायर, वन इज फिक्स कैपिटल एंड अनदर इज वर्किंग कैपिटल. ना फिक्स कैपिटल क्या होता है कि whenever you need to purchase your fix or you need to purchase a
the fixed assets such as land, building, machinery, equipment, and furniture. So fixed capital has been required to purchase a fixed or a fixed asset such as land, building, machinery, equipment, and furniture. So fixed capital is being required to purchase your fixed asset. तो fixed capital को दूसरे नाम से भी आइडेंटिफाई किया है, that is your long term capital. The amount of fixed capital depend mainly upon the nature and the size of the business. जितना आपका साइज बड़ा होगा उतना आपको एसेट परचेज ज्यादा करना होगा, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. नेचर, दैट इज इफ यू आर डीलिंग विद मैन्युफैक्चर, इफ यू आर डीलिंग विद सर्विस इंडस्ट्री, तो आपका कौन सी टाइप का नेचर, टाइप ऑफ बिजनेस क्या, ट्रेडिंग कौन सा है, मैन्युफैक्चर है कि एग्रीकल्चर है, उसमें भी फिक्स कैपिटल का अमाउंट डिपेंड होगा. तो फिक्स कैपिटल इज बीइंग रिक्वायर्ड एंड टू परचेज योर फिक्स एसेट एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द size of the business. The manufacturing industry may require huge amount of investment, whereas trading concern require less investment. That is an example कि fixed capital है वो totally depend किस पे होता है, nature and the size of the business. Now, working capital. Working capital is required to invest in current asset because current asset मतलब to meet your short term needs. It cover the expenses. Short term needs कौन से होते हैं? It cover the expenses such as buying the raw material. ठीक है, हमें raw material buy करने के लिए पैसे की जरूरत होती है. Payment of wages and salary. Need to pay rent. Need to pay electric bill. Need to pay water bill. Repair, maintenance, advertisement. ये सारे जो है वो short term expenses हैं and that can be made by the current asset. तो जब भी हमें कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करना है करंट एसेट में, तब हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कैश इन्वेंटरी हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, आर बिंग रिगार्डेड एज अ करंट एसेट. तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल बिकॉज कैश हाथ में आया, उसको हमने इन्वेस्ट किया, फिर से कैश ही जनरेट होने वाला है. तो वर्किंग कैपिटल इज टू हैव योर फाइनेंस फॉर मीटिंग योर करंट एसेट, फॉर मीटिंग योर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस. तो फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योर वेंचर में आपने अभी क्या पढ़ा, फाइनेंसिंग ए न्यू एंटरप्राइज. उसमें एंटरप्राइज हैज अ टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. नाउ द अनदर टॉपिक इज एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. ठीक है, estimating the financial requirement which is totally depend upon your time period of your business. Estimating financial requirement मतलब an enterprise need to raise the funds. ठीक है, it clearly determine its financial requirement. But estimating the financial requirement for an enterprise involve determining the total amount of capital required for various needs of business and decide the source and method to raise. ठीक है, हमें पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि कितना रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द वेरियस नीड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के नीड के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट डिपेंड होगा. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डिसाइड द सोर्सेज एंड मेथड टू रेज इट, कि कैसे वे में रेज करें, कौन सा सोर्स यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें. द फाइनेंशियल नीड कैन बी फुलफिल थ्रू ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल. खुद की कैपिटल से ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है खुद की कैपिटल से का तो बोरोड कैपिटल से ये रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सकती है. द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड कैन बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग term capital, medium term capital and short term capital. ठीक है, now it is totally based on your time period. टाइम पीरियड के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट जो है वो डिसाइड होगा. तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड होती है. ठीक है, तो दिस इज योर एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. नाउ आफ्टर दैट you need to understand कि what are the sources of your long term capital. The sources of the long term capital is, and you know what is mean by long term capital. Long term capital is required to finance a fixed capital and permanent part of the working capital. long term capital मतलब जब भी हमें fixed capital और permanent part of capital requirement होती है, तो long term capital से हम वो need है, वो requirement है, वो justify कर सकते हैं. So there are various sources, जैसे we know that issue in a debenture or a share, we need to take a loan and advances on the bank and financial institute. It is a capital which is required for the period of 5 years or more. 5 साल के लिए पैसे की जरूरत हुई, कभी 5 साल से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के बेस में आइडेंटिफाई होगा. नाउ व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल. ठीक है, मीडियम टर्म आगे हम पढ़ेंगे कि मीडियम टर्म कैपिटल कब रिक्वायरमेंट है. सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, द फर्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंस. नाउ इक्विटी फाइनेंस दैट मीन्स equity finance, that means it refers to method of raising a long term funds by selling the common and preferred stock of an enterprise to the investor.
इक्विटी फाइनेंस क्या होता है, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो बाय रेजिंग योर फंड्स थ्रू योर सेलिंग ऑफ द प्रिफर्ड और अ कॉमन स्टॉक ऑफ एन एंटरप्राइज टू इन्वेस्टर। आपके जो स्टॉक है, आपके जो शेयर है, आपके स्टॉक है, आपके जो शेयर है, उसको आप बेचोगे आपके इन्वेस्टर से, तो आप पैसे रेज कर सकते हो। द इन्वेस्टर गेट ओनरशिप इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज। आप शेयर बेचोगे तो जो इन्वेस्टर होगा उसको ओनरशिप मिलेगी और वो अपना अमाउंट जो है वो पेड कर सकते हैं बाय परचेजिंग द कॉमन एंड प्रिफर्ड स्टॉक ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पे शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल हो सकता है and may involve limited liability of the shareholder to the face value of the share. The shares are basically of equity share and preference है। अगेन एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि ए और बी है, ए एक इन्वेस्टर है और बी एक कंपनी है। ए ने जो इन्वेस्टर है जो बी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ए ने बी कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है। तो ए ने बी कंपनी के शेयर परचेज किए तो उससे उसका ओनरशिप उसको मिलेगा, और परचेज किया तो उसको पैसे वो बी कंपनी को देगा, तो उससे बी कंपनी जो है वो पैसे रेज कर सकते हो। दैट कैन बी इक्विटी फाइनेंस। तो यहाँ पे इक्विटी फाइनेंस में दो तरीके से आप रेज कर सकते हो। शेयर जो होगी वो दो तरीके से हो सकता है, एक होगा इक्विटी, एक होगा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप शेयर जो है वो इजिली ट्रांसफर कर सकते हो एंड इट इन्वॉल्व लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट इज योर डेप्ट फाइनेंसिंग। नाउ डेप्ट फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेप्ट टू द एंटरप्राइज। यहाँ पे द कंपनी कैन रेज थ्रू डिबेंचर कैपिटल अ सोर्स टू रेज द डेप्ट कैपिटल। डेप्ट फाइनेंशियल इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइज एंड अ डिबेंचर होल्डर। अगेन ए डिबेंचर होल्डर है, बी एंटरप्राइज है, तो डिबेंचर होल्डर एंटरप्राइज में एग्रीमेंट हो रहा है जहाँ पे कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक डेट में अमाउंट रिपे करने के लिए बोल रहे हैं। तो इफ एंटरप्राइज रेज फंड्स टू इशू ए डिबेंचर, ही नीड टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल। ए एंड बी है, जैसे कि ए डिबेंचर होल्डर है, बी कंपनी है, तो ए को डिबेंचर होल्डर कौन है, बी कंपनी है, तो उसको फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर ऑफ एन एंटरप्राइज आर नोन एज क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर जो होगा वो क्रेडिटर कहलाएंगे। Term loan, the easiest form of the financing, that is that type of long term loan that are raised has but a duration of 2 from 3 years to 10 years from the bank and financial institute। आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से टर्म के बेस पे आप अपने पैसे रेज कर सकते हो। यहाँ पे 3 years से 10 years तक आपका टर्म लोन हो सकता है, ठीक है। टर्म लोन कैरी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैव अ प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड। दो टर्म लोन में मैच्योरिटी पीरियड होगा और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ दिस लोन आर IDBI, ICICI, कमर्शियल बैंक, IFC, ये सब बैंक है जो आपके टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी एंटरप्राइज है जो अपने टर्म लोन का यूज कर सकते हैं टू परचेज ए फिक्स एसेट एंड फंड प्रोजेक्ट हैविंग अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मीडियम टर्म, नाउ व्हाट इज मीन बाय योर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग क्या होता है कि जब भी हमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे कि रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग करना है, एक्सपेंडिचर करना है एडवर्टाइजमेंट में, का तो हमें मॉडर्नाइज मशीनरी खरीदनी है, तब हम मीडियम टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म फाइनेंस इज बीइंग रिक्वायर्ड for performing a different activities such as renovation of building, expenditure on advertisement, modernization of machinery हमें करना है। This capital can be raised on different sources such as debenture and shares and reinvestment of accumulated profit। The medium term capital जो हमें require हो, the time period will be up to 2 years to 5 years, ठीक है। The medium term capital जो required है, time period क्या होगा, from 2 years to 5 years। कोई भी एंटरप्राइज अपने मीडियम टर्म फाइनेंस वेरियस सोर्स से, जैसे कि लीज फाइनेंस है, हायर फाइनेंस है, पब्लिक डिपोजिट है, रिटेन अर्निंग है, उससे वो पैसे रेज कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय रिटेन अर्निंग। वी नो रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट जब भी एंटरप्राइज अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब यूज कर रहा है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट विच कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर, उसको हम बोलेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जो पैसे रिजर्व है प्रॉफिट में से, वो पैसे का हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू मीट अवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलेंगे रिटर्न अर्निंग। एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर सम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर लेफ्ट विद द अर्नर। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो एंटरप्राइज के पास है, वो हैज अ रिटर्न
earning has a reserve रहता है, and this profit is transferred to reserve fund each year, and this one is called nothing but the return earning. You are knowing very well because have learned it in accounting. Lease finance क्या है? It is an agreement between the owner of the asset called lessor and the user of the asset called lease. इन लीज फाइनेंस क्या होता है? जो ओनर है अपना एसेट वो लीजर को देता है, ठीक है, लीज को देता है, जिससे उसका पेमेंट, जैसे कि वो लीज रेंट पे करेगा, तो लेजर एंड लीजर। तो यहाँ पे लेजर जो ओनर है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक मशीनरी की मैं ओनर हूँ, तो मैं आपको मशीनरी यूज करने के लिए दे रही हूँ, तो आपको मैं ओनरशिप नहीं दे रही हूँ, खाली एक यूज करने के लिए मशीनरी दे रही हूँ, उसके लिए आप पेमेंट करो, तो उससे भी आप मीडियम टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हो। हायर परचेज इज ऑल्सो सेम लाइक दैट। हायर परचेज में क्या होगा? अगेन इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हायरी एंड हु इज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हायरर हु इज अ यूजर ऑफ द एसेट। यहाँ पे आप एक एग्रीमेंट करोगे जहाँ पे हायरी जो है वो ट्रांसफर करता है अपना एसेट टू हायरर, कीपिंग ओनरशिप टाइटल विद हिमसेल्फ। सेम लीज एंड लेजर के बेस में होता है, वैसे ही सेम ए एंड बी है तो ए हायरर है, तो ए बी हायर ए हायरी है तो बी हायरर है। तो यहाँ पे जो ओनर है अगेन वो अपने ओनरशिप अपने पास रखेगा, बट सडन पीरियड के लिए वो अपना एसेट जो है वो हायरी को देंगे, तो उससे क्या होगा? एक बेनिफिट क्या होगा कि पेमेंट जो है वो हायरर पे करेगा पीरियडिकल, जिससे हमारा पैसे जो है हम यूज कर सकते हैं और पैसे जो है वो रेज कर सकते हैं। पब्लिक डिपोज जैसे पैसे हम पब्लिक से रेज करते हैं थ्रू पब्लिक, जनरल पब्लिक, एम्प्लॉयज एंड अदर सिमिलर काइंड ऑफ डिपॉजिट आर कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक डिपॉजिट। तो इट कैन बी रिफर्ड द फंड्स एंड लोन्स आर बीइंग रेज from the general public, employees and other similar kind of deposit, उसको बोलेंगे पब्लिक डिपोजिट। वेंचर कैपिटल फाइनेंस मतलब क्या हुआ? इट इज नथिंग बट वाइडली यूज सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस। नाउ मीडियम टर्म फाइनेंस है जहाँ पे आप रिस्की कैपिटल इट बीन रिक्वायर्ड टू पेड इट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। वेंचर कैपिटल जैसे कि जब भी न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, ठीक है, उस टाइम में वेंचर कैपिटल रेज कर सकती हूँ, उसको बोलेंगे हम वेंचर कैपिटलाइज। इट इज एक्टिंग एज अ पार्टनर, जहाँ पे पैसे हम एक्टिंग एज अ पार्टनर, मैनेजर एंड एडवाइजर, जहाँ पे आप इनक्रॉप्शन के लिए, एक्सपांशन के लिए, एक्विजिशन के लिए पैसे रेज करते हो। दैट इज योर वेंचर कैपिटल फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज योर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें क्यों रिक्वायरमेंट है? जैसे कि जब भी हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो मीट अवर इनकम टू मीट अवर एक्सपेंडिचर, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जैसे कि कभी हमारी करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, सजेस्ट पेमेंट ऑफ सैलरी पे करने के लिए, वेजेस को, लेबर को वेजेस देने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल और इन्वेंटरी को परचेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है और पैसे नहीं है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो रेज कर सकते हो। नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज डे टू डे एक्टिविटी। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम सिंपल वे में स्पीड में करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन में डिटेल जाएंगे। ट्रेड क्रेडिट मतलब जब भी दो ट्रेडर के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। एक सप्लायर है जो सप्लायर है और एक है बायर। सप्लायर जो है अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है अपने बायर को, ठीक है, उस टाइम वो कुछ पेमेंट नहीं ले रहा है, ऐसे ही वो रॉ मटेरियल जो है वो बाय कर रहा है विद एन उधार में उसको दे रहा है, ठीक है। डिसीजन टू प्रोवाइड ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ बायर एंड सप्लाई अपने रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है अपने बायर को विद सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और विद सिंपल क्रेडिट, उधार में दे रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। तो उससे भी पैसे रेज कर सकते हो। कैश क्रेडिट जहाँ पे एक बैंक जो होती है, कैश क्रेडिट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर टू विड्रॉ द कैश एक्सीडिंग द अकाउंट लिमिट। अकाउंट लिमिट में पैसे की मतलब विद यहाँ पे एक लिमिट मिलती है कि उस लिमिट से आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब लिमिट के बाहर अपना कैश एक्सीड हो गया, ठीक है, यू आर हैविंग अ सर्टेन लिमिट, उससे ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। बट कैश क्रेडिट में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ बैंक एंड कस्टमर जहाँ पे यू कैन विड्रॉ द कैश एक्सीडिंग द अकाउंट लिमिट, ठीक है। तो कैश क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस
Time limit being granted is 1 year, which can be further extended by the bank in case of the special request by the customer. Commercial paper being issued by the highly rated company जिसका नेट वर्थ 4 करोड़ है, जिससे कमर्शियल पेपर इश्यू करती है और पैसे वो रेज कर सकती है. बैंक लोन सिंपल, यू कैन रेज द मनी फ्रॉम योर बैंक. दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल जो बैंक्स हो स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे रेज कर सकते हो फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. मिनिमम डॉक्यूमेंट है लीगल फॉर्मेलिटी टू पास अ लोन. ठीक है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी जो होती है तो लोन पास करने के लिए, तो वहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है. और वेरियस बैंक आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइन टू एक्सटेंड द बैंक लोन टू द कस्टमर. ठीक है, तो उस हिसाब से सर्टेन इनकम प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आप अपना और सर्टेन गारंटर के हिसाब से आप अपना बैंक का लोन सेक्शन कर सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. Now, certificate of deposit is nothing but a promissory note which is issued by the bank. Commercial bank is being issued by the highly rated company, and certificate of deposit is being issued by the bank. ठीक है, so it is issued by the bank to the client for depositing the fund in a concerned bank for the specific time period. जो maturity time period है certificate of deposit is minimum 7 days, maximum 1 year. The maturity period of certificate of deposit can range from 3 months to 1 year. देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे आप बिल एक्सचेंज करते हो, इट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर इंडिविजुअल डिमांड रिसीवर टू गिव पेमेंट ऑफ सर्विस एंड गुड्स रिसीव टू थर्ड पार्टी एट अ फ्यूचर डेट. वहाँ पे क्या होगा कि आप जो बिल है उसका पेमेंट आप बाद में करने वाले हो, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से आप बिल एक्सचेंज करोगे. कस्टमर एडवांस, जैसे कि हम देखते हैं कि सर्टन कस्टमर एडवांस से पेमेंट कर सकते हैं. डिटेल्स में आपने देखा होगा, अकाउंट में आपने सीखा होगा, तो सर्टन कस्टमर हमें एडवांस में पैसे पे कर सकते हैं, तो एडवांस में पे कर लेते हैं. तो कस्टमर एडवांस मतलब क्या, जब भी कस्टमर सडन एडवांस पहले से पेमेंट कर लेते हैं उस टाइम हम पैसे रेज कर सकते हैं. दैट कैन बी अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू कस्टमर एडवांस. सोचो तो कोई कस्टमर से हम कस्टमर पहले से पैसे मांग लिए. ठीक है, कस्टमर एडवांस मतलब we define a part of payment which is given in advance to the enterprise by the customer for the procurement of goods and service in the future. It is also called as cash before deliver नहीं हुआ पर उससे पहले कैश मिल गया एडवांस में. The enterprise is free to decide whether to refund the fund or if order cancelled by the customer and does not require paying interest on customer advance. ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा. फैक्टरिंग्स, इट इज सम सेम लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज. जैसे कि एक सेलर है एक बायर है, बीच में हैज अ फैक्टरर. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एक रोल प्ले करते हैं. जब भी सेलर गुड सेल करता है बायर को बट बायर इज नॉट एबल टू पे द पेमेंट, तो एक फैक्टर हैज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो एक रोल प्ले करता है जहाँ पे बायर के जो पैसे पेमेंट करने हैं सेलर को वो फैक्टरर पे कर लेता है सेलर को, और इन शॉर्ट सेलर को एंड टाइम पैसे मिल जाएगा और बायर को अपना टाइम मिल जाएगा पेमेंट डिले कर मतलब पेमेंट बाद में करने के लिए. उसके बाद फैक्टरर क्या है, अपने पैसे जो बायर से निकालने हैं मतलब बायर से लेने हैं वो फैक्टरर अपने बायर से पैसे ले लेते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक दैट अलाउ द ऑर्गेनाइज टू ओवरड्रॉ फ्रॉम इट्स करंट डिपोजिट अकाउंट विद अ कंसर्न बैंक अप टू स्पेसिफिक लिमिट. ठीक है, अपनी लिमिट के बाहर से आप पैसे जब रेज करते हो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. द फैसिलिटी इज बीइंग ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी लाइक promissory notes, goods in stock, marketable security. The interest rate will be charged on the cash credit. So this was the short-term finance. This all topic will be explained in your live section because in detail I will explain you. In short, I have explained you. In detail way, we will go in our live section. Just go through the brief introduction, a brief part of this section, brief part of this topic, so you can get a rough idea and you can have understanding of this topic in very easiest form, so you can write by your own words. Thank you all students for listening.